Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video I uploaded, I shared some general life updates and the fact that my bhaiya was getting married and how I was keeping little inactive from social media, particularly YouTube. So now शादी हो गई है and बहुत 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 मजा आया to everyone who is asking me. मतलब जैसे सब कहते हैं इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग एंड इतना दिल से मजा आता है ना जितना आपको मतलब खुद के भाई बहन की शादी में मजा आता है ना जो मुझे नहीं लगता वो आपको खुद की शादी में भी आता होगा. So yes, that happened. But right after the shadi, so much happened that I couldn't really get a lot of time to sink it in and process it. So I might need more time. But in the last video also I shared how my last 6 months looked like. And in this video also I want to just give you some updates what happened right after marriage, where am I right now, and how my next few months will look like, because that's how I just plan in batch of 6 months my life. एंड जैसे लोग कैसे डायरी एंट्री करते हैं या जर्नलिंग करते होंगे, आप भी करते होंगे, या कुछ विजन बोर्ड बनाते हैं और जस्ट डू समथिंग ऑन देयर पर्सनल डायरी और कंप्यूटर और फोन. मेरे लिए वीडियो वो मीडियम है. आई नो इट डजंट स्टे पर्सनल व्हेन इट इज अपलोडेड, बट दैट्स हाउ आई लाइक इट. एंड इफ इट इज एबल टू जस्ट हेल्प यू इन एनी वे, और जस्ट इफ यू आर एबल टू रिलेट इन एनी वे, आई बी मोर देन हैप्पी. तो ये से एकदम ओपन डियर डायरी की तरह है. In this video I majorly want to cover the trip which happened right after marriage. जैसे ही शादी खत्म हुई, I got a message from office because I said that I'll be available from 9th, and they asked me if I can join them on a trip to Madhya Pradesh. So they gave me an option that it's completely okay if you are too tired and if you can't join. But मैंने जो भी like से दिमाग लगाया ऐसे करा, and with everyone's support I said yes. I was dead tired, मतलब of course वो happy वाला tired. But right next day in morning I had a train to catch. तो 15 मिनट पहले तक तो पक्का प्लान भी नहीं था जाना है या नहीं जाना है. बट फिर सब डिसाइड किया, भाइयों ने मेरा पैकिंग किया एंड हमने भागते भागते ट्रेन पकड़ी. सो आई बोर्डेड द ट्रेन. ऑनेस्टली आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग जब मैं भैया को बाय बोल रही थी स्टेशन पे, बिकॉज अभी तो भैया भाभी भी हनीमून पे नहीं गए थे, अभी तो शादी की इतनी चीजें रहती थी. देयर वाज सो मच टू डू एंड प्रोसेस एंड लाइक सिंक इन, बट आई जस्ट लेफ्ट. एंड because in somewhere in my heart I knew that if I say yes to this trip, it would it would be a very nice experience. Because I don't know if many of you know this, but I am associated with an organization. I'm interning there, more like working. It's an NGO which is doing some phenomenal beautiful work, like really value oriented, very passion driven work. So I really enjoy being part of any of their programs. जब भी मैं कुछ attend करती हूँ, जब भी मैं कुछ भी इनसे relate करती हूँ, it just enriches my life to another level. So this trip was with my boss, the founder of the organization. So she invited me, and she was very sweet about the fact that आपको नहीं भी आना है तो it's okay. But I saw it like an opportunity, and it would be just a good refreshing experience. So I said yes to it. And now why this video? As I mentioned in the beginning of the video, it's like a diary entry because I don't read and write, not very proud of it, but I can't journal things. I have tried it before, but video is my thing. Like when I'll say it over a video, I'll feel like okay, it's stored somewhere. Because so much has happened in past few days and weeks कि मुझे ये सब किसी से शेयर करने का भी टाइम नहीं मिला. लाइक वरना मैं फ्रेंड्स फैमिली को बता देती हूँ एक बार. सो दिस विल प्रोबेबली बी द फर्स्ट टाइम जब मैं ये सब कुछ एक साथ बोल रही हूँ, like whatever I'm going to say. This video is mostly about this trip and the people I met, because लोगों से ही तो कहानियां बनती है. हम कोई भी कहानी बताते हैं तो हम ये थोड़ी बोलते हैं ये टेबल था या ये ऑब्जेक्ट था, ये पैसे थे. इट्स द पीपल, अच्छे या बुरी कहानी हो, उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं. एंड दिस ट्रिप हैज द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल, ट्रस्ट मी, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. लाइक आई met genuinely amazing people. So I just want to savor it and store it in a video. I don't know, it makes me happy. And if it adds anything to you, if you're able to relate to any of it, I would be happier. So जब मैंने ट्रेन बोर्ड करी, स्टार्टिंग में ही मुझे ट्रेन में, सो आई मेट अ मतलब ओल्ड एज अंकल जिन्हें जिनका अपर बर्थ अलॉटेड था, एंड मेरा भी अपर बर्थ था, तो ही वांटेड टू एक्सचेंज, बट मेरा भी अपर बर्थ था. सो ही वाज वेरी पेसिमिस्ट अबाउट द फैक्ट कि नहीं कोई भी चेंज नहीं करेगा. मुझे पता होता अगर अपर बर्थ है तो मैं लाइक मैं ट्रेन ही बोर्ड नहीं करता. और ऐसे आई मेड श्योर कि अंकल हो जाएगा, लाइक आई टॉक टू समवन, कोई ना कोई आपको दे देगा. एंड देन वन गाय केम एंड ही ऑफर्ड हिज सीट जो लोअर थी, लाइक स्वीट डिसेंट थिंग टू डू. बट देन
फिर मैं उससे बात करने लगी, द गाय हू ऑफर्ड टू हेल्प, एंड ही वाज इन इंडियन आर्मी. uh, I would not want to talk a lot about him in this video because he was also very particular and secretive about his thing. But कुछ होता है आर्मी वालों में. It was great just having him around. And जब बिकॉज मैं कुछ खाना लेके नहीं गई थी, एंड इट वाज अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी, तो मैंने ट्रेन में खाना ऑर्डर किया था. एंड समहाउ मेरा यूपीआई वर्क नहीं कर रहा था, सो ही ऑफर्ड टू पे फॉर माय फूड, व्हिच ऑफ कोर्स आई वाज सपोज्ड टू रिटर्न, बट देन आई फॉरगॉट एंड ही डिडंट इवन आस्क मी अगेन. मैं ट्रेन से निकल गई, स्टेशन के बाहर आई एंड इट हिट मी. तो मैंने इतना देखा इधर उधर, बट ऑफ कोर्स आई लॉस्ट हिम. एंड आई स्टिल, मतलब आई फील सो टेरिबल बैड अबाउट इट कि यार ही डिडंट इवन आस्क फॉर द मनी. ऑफ कोर्स उन्हें तो याद होगा. मतलब लास्ट तक इतना हम साथ में ही थे एंड हम निकल रहे थे, बट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया. एनीवे, एंड देन आई टुक एन ऑटो फ्रॉम भोपाल रेलवे स्टेशन. उबर बुक नहीं हो रहा था. एंड इफ यू नो मी, देयर इज सम हेट हेट रिलेशनशिप बिटवीन ऑटो ड्राइवर्स एंड मी, स्पेशली दिल्ली में नहीं बन पाती हमारी. बट देन दिस ऑटो ड्राइवर वाज सो स्वीट. ही डिडंट कोट एन अनरीजनेबल चार्ज स्टार्टिंग में ही. इट वाज प्रीटी फेयर एंड ही हेल्प्ड मी विद द लगेज. फिर हम पहुंच गए. आई पेड हिम अ डिसेंट गुड एक्स्ट्रा अमाउंट because it was a good experience. And then I went to hotel. I checked in. होटल में चेक इन में भी द रिसेप्शनिस्ट वाज सो स्वीट, द होल स्टाफ वाज सो स्वीट. लंच में बुफे, लाइक इट वाज अ बुफे, जिसपे से लिखा हुआ था दैट you are not allowed to take food in the room, but I still asked if I can take, and they just said yes in one go. कि मुझे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं लग रही थी, और अभी तक मैं अकेली थी. माय बॉस डिडंट चेक इन अंटिल लेटर टुनाइट. तो बहुत आराम से, लाइक आई वाज स्टार्टेड टू फील अगेन लाइक बेटर. अभी मुझे घर की याद आ रही थी, बट ऐसे अच्छे लोग मिलके अच्छा लगने लग गया था. देन आई थॉट कि आई एम इन भोपाल फॉर जस्ट वन डे, तो मैं थोड़ा घूम के आ जाती हूँ. इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन भोपाल. So I went out. Everyone suggested me to go to One Vihar, जहाँ पे it's more like a national park and lake view ऐसा. So I went there. I booked a Uber bike. That's what I do. मुझे Uber bike ही सूट होती है. I don't use cab. तो वो Uber bike वाले भैया, जैसे ही हम लोग वन विहार के गेट पे पहुंचे, तो बिकॉज इट्स अ बिग नेशनल पार्क, तो एक एंट्री गेट था जहाँ पे पैसे देने थे. एंड वहाँ पे ऑप्शन था कि डू यू वांट टू वॉक और टेक अ साइकिल, और यू टेक दिस बाइक इनसाइड और योर प्राइवेट कार, ऐसा करके. सो आई सेड कि बाइक अंदर चला जाएगा, तो उन्होंने बोला कि उसका एक्स्ट्रा मनी है, लाइक 60-70 रुपीज एक्स्ट्रा था. सो आई पेड दैट. तो मुझे रियलाइज हो, मतलब भैया आपको भी तो फ्री होना होगा ना, तो मैंने सोचा कि अंदर आप छोड़ के आ जाओ अंदर तक, और फिर आई कम ऑन माई ओन, या मैं साइकिल कर लूंगी. बट उन भैया के एक्साइटमेंट से ही, वहाँ पे घुसते से ही ऐसे मुझे रियलाइज हुआ कि वो भी पहली बार आए हैं. तो आई आस्क्ड हिम कि हैव यू नॉट बीन हियर बिफोर. तो उन्होंने, नहीं मैं कभी नहीं आया. जबकि भोपाल में काफ़ी फेमस है ऐसे वन विहार. तो हम जैसे जैसे गए, हमको एकदम स्टार्टिंग में वी स्पॉटेड अ टाइगर. वो भी बहुत एक्साइटेड हो गए, उन्होंने कभी नहीं देखा था. फिर ऐसे करते करते उन्होंने पूरा जू का, लाइक द नेशनल पार्क का ट्रिप पूरा साथ में किया. एक एक जगह ही वाज आल्सो सो एक्साइटेड टू सी एवरीथिंग. तो ही बिकेम अ, लाइक मेरे वो सोलो से वेंचर में ही बिकेम अ टैग अलोंग. तो हमने सारे एनिमल्स ऐसे साथ में देखे. एंड ही वाज सच अ डिसेंट नॉन क्रीपी मैन. तो आई वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल विद इट. तो हम लोग एक स्पॉट दूसरे स्पॉट तक गए. उसके बाद मैंने सोचा कि उनसे पूछते हैं इफ यू वांट टू डू बोटिंग. आई वाज श्योर उन्होंने बोटिंग भी कभी नहीं किया होगा लाइफ में, मतलब लाइक एटलीस्ट इन भोपाल. सो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने नहीं किया था कभी. सो आई टुक हिम टू बोटिंग, एंड फिर हमने बोटिंग किया, फिर हम फ्री हो गए. तो काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. उसके बाद उनके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया. तो हम कैसे-कैसे ड्रैग करके उसको पेट्रोल पंप तक ले गए बाइक को. फिर हमने पेट्रोल फिल कराया. उन्होंने बोला आप चले जाओ दूसरे बाइक पे, या दूसरी, मतलब कैसे भी इट्स ओके. बट देन आई थॉट कि इतना देर साथ रहे तो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है. सो आई फेल्ट इट लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैंने आई आल्सो ऑफर्ड टू जस्ट हेल्प एंड गो एवरीवेयर जहाँ पे भी पेट्रोल पंप तक पहुँचना है. फिर वो सब हो गया. उसके बाद मैं वापस होटल चली गई. तब मेरी बॉस भी आ गई कुछ देर बाद में. आई स्लेप्ट. And by the way, my boss is an amazing human being. I mean, you don't find bosses like them who just lets you be you, and you learn so much from them. That would need a separate YouTube video someday. तो उसके बाद हम सुबह उठे भोपाल से. एंड अब हमें जाना था छोटे-छोटे गाँव में एमपी में. तो हम तिमरनी गए, फिर तिमरनी से हरदा गए, ऐसे बहुत सारी जगह हमने कवर करी. वहाँ पे हम लोग इतने अमेजिंग लोगों से मिले जो लोग इतना ब्यूटीफुल वर्क कर रहे हैं. सो देवर दीज वर द पीपल जो बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड प्लेसेस से है. लाइक आई एम श्योर यू मस्ट हैव नॉट इवन हर्ड तिमरनी और हरदा. भोपाल तो सबको ही पता है, बट वो लोग कास्ट वाइज, क्लास वाइज,
area wise they come from a very backward area with almost nothing, no great education या infrastructure या facilities, घर पे environment भी बहुत वो होता है, but we just choose to uh, break all these barriers and मतलब they want to do something about their communities. I don't know मैं कितना इस वीडियो में पुट कर पा रही हूँ इस बात को, but they were very inspiring people. मतलब हमारे पास तो सब कुछ है, it's not to compare, but they really have nothing in comparison to us, and the way they are working on themselves and to bring a change, real influencers, real change makers. तो बहुत मजा आया, हमने बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया. मैं इस वीडियो में मेंशन करने लगूँ तो देवर मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी इतने लोगों को मेंशन, बट माय बॉस एंड आई वी मेड अ वीडियो आउट ऑफ दिस होल जर्नी. मैं थोड़ा सा उसकी ग्लिम्स दिखा सकती हूँ व्हाइल आई एम स्पीकिंग. द पर्सन वी मेट, उन्होंने हमको घर पे भी खाना खाने के लिए ऑफर किया, हम उनके घर भी गए. मतलब जगह जगह पे जो खाना, लोग जो मिले, उनकी कहानियाँ आउट ऑफ द वर्ल्ड. हम एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में गए थे मरनी में, जो ओनली स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ पे, एंड देवर 50-60 गर्ल्स एंड बॉयज जो सिर्फ वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे. एंड मुझे मेरे से पुराने दिन याद आ गए बास्केटबॉल के. एंड उनमें से anyone you pick, they were national players, international players, state level champions, 15-15 नेशनल्स खेले हुए. मुझे पता है कितनी बिग डील है, मतलब कितनी बिग डील है. सो इट वाज सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि और ये सब वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट. द कोचेस आर ट्रेनिंग देम एंड दे आर लर्निंग एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये जो 3-3.5 days का एमपी में वन लोकेशन टू नेक्स्ट लोकेशन जो पूरा खोज यात्रा थी, अ, उसमें हम लोग बहुत पैशन ड्रिवन लोगों से मिले जो सच में कुछ इम्पैक्ट ला रहे हैं वर्ल्ड पे. एंड हम हरदा गए, वहाँ पे वो लोग जो दलित आदिवासी स्टूडेंट्स हैं, बहुत छोटे-छोटे बच्चे जिनको हिंदी, फॉरगेट अबाउट इंग्लिश, हिंदी भी नहीं आती बोलनी, उनके साथ में वो लोग कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उन्होंने, जहाँ पे वो हर घर लाइब्रेरी, हर घर किताब पहुँचाते हैं. एंड बच्चे भी इतना खुश होके शाम को इवनिंग स्कूल में आते हैं. दे एक्चुअली स्टडी. वी वेंट देयर एंड सॉ ऑल ऑफ इट. बहुत ही अच्छा था, मतलब I can't put it in words, but it was very beautiful. I'll just try to add some pictures, would really try to make sense of what I'm speaking. But ऐसा रहा. फिर 3-3.5 days हमने ये किया, अलग अलग लोकेशंस पे हम गए, एंड फिर मुझे वापस घर जाना था. तो आई हैड अ फ्लाइट बैक होम. तो मुझे भोपाल से इंदौर बाय रोड जाना था, एंड देन आई हैड अ फ्लाइट. तो जिस होटल में मैं रुक रही थी, नॉट द भोपाल वाला, हम जहाँ थे मरनी आ गए थे, उनके रिसेप्शनिस्ट इतने, मतलब उन्होंने एक पूरा जिम्मा ले लिया मेरा, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन भोपाल ऑल्सो एंड तिमरनी ऑल्सो. अब मुझे यहाँ से जो भी कैब लेनी थी, तो दे सजेस्टेड कि आप बस ले लो, इट वुड बी मच चीपर एंड इट इज सेफ ऑल्सो. तो रात को बस होती लाइक 1 बजे, 3:30 बजे रात की. दे मेड श्योर कि नहीं, हम आपको बस स्टेशन तक ड्रॉप करके आएंगे, हम आपका टिकट करा देंगे. दे कॉल्ड मल्टीपल पीपल, अच्छा यहाँ पे नहीं, ये ऐसी सीट चाहिए, ये वो. उन्होंने पूरा वो ऐसे ले लिया. एंड दैट होटल में, वो बस उस होटल को स्टार्ट हुए barely 1 week हुआ होगा, बट वो लोग इतने स्वीट थे. तो उन्होंने मुझे बस स्टॉप पे अच्छे से बिठा दिया, एंड जब तक बस नहीं आई तब तक दे वेटेड द गाय एट रिसेप्शन. जो उसके बाद में बस मैंने ले ली. बस में आई वाज मेड टू सिट विद अ बॉय, एंड द गर्ल्स के अंदर एक सिक्स सेंस होता है, दे जस्ट नो इट. तो ही वाज अ वेरी वेरी नाइस जेन्युइन पर्सन. ही वाज यूजिंग ईयरफोन्स, कुछ देख रहा था फोन पे. आई सैट नेक्स्ट टू हिम. बहुत थोड़ी-सी कुछ बात हुई हमारी, कहाँ से है, क्या है, और बस वो इतना कंफर्टेबल था ना, द होल वाइब वाज़ सो कंफर्टेबल बिकॉज़ इट वाज़ अ वेरी क्राउडेड बस, और इतनी रात हो गई थी, और मेरे लिए बहुत हेक्टिक था पूरा जो शादी वाला, उसके बाद एकदम से इतना इमीडिएटली ट्रैवल करना, एंड उस ट्रैवल में भी एवरी डे इट वाज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग. सो आई जस्ट वांटेड टू स्लीप. एंड आई डोंट नो मतलब हाउ टू वेरी अप्रोप्रिएटली पुट इट इन अ वीडियो, बट आई वाज़ जस्ट वेरी कंफर्टेबल इन हिज़ वाइब. तो मैं आराम से मतलब ऐसे बस सो गई, एंड ही मेड श्योर कि मतलब जब कोई स्टॉप आया तो मुझे लाइक पूछ लेना कि क्या है. व्हेन वी रीच्ड इंदौर, बिकॉज़ इट वाज़ वेरी अर्ली इन मॉर्निंग, 4:30 एएम. तो जब तक मेरी कैब नहीं आई, ही वेटेड फॉर द कैब. एंड अगेन लाइक कुछ भी नहीं, जो क्लासिक जनरल लड़कों की हम बात करते हैं, सम क्रीपी, उनको कुछ इंस्टाग्राम चाहिए होता है, नथिंग नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जस्ट वेरी नाइस पर्सन. फिर मैं कैब में बैठ गई, द कैब ड्राइवर वाज़ ऑल्सो, बिकॉज़ 4:30 एएम था, मुझे थोड़ा तो मन में था सम पास्ट ट्रॉमा अबाउट कैब्स. ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ में, बट सम ट्रॉमेटिक थिंग, 18 ईयर ओल्ड चेष्टा इन दिल्ली. तो मुझे कैब्स, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कैब्स, बट अगेन इट वाज़ अ स्मूथ राइड टू एयरपोर्ट. और फिर एयरपोर्ट में मैं चली गई. वहाँ पे भी बस
अपने आप अच्छे-अच्छे लोग मिल रहे थे। छोटी-छोटी हेल्प, मतलब वो वेब चेक इन नहीं हो रहा वहाँ पे, तो एकदम कोई रैंडम इंसान ने मेरे लिए वो हेल्प कर दिया। उसके बाद मैं पहुँच गई। मैं लाउंज में पहुँची तो आई डिडन्ट हैव माय कार्ड, जो एक्सेस कार्ड होता है ना, मतलब जो भी आपका कार्ड है जिससे आपको लाउंज में एक्सेस मिलता है टू सिट देयर एंड ईट। आई डिडन्ट हैव द फिजिकल कार्ड। अब सुबह की 5 बजी है और मुझे आ रही है बहुत नींद। बिल्कुल भी ऐसा अलाउड नहीं होता है। आई वुडन्ट लाइक टू मतलब नेम दोज़ पीपल, बट ही अलाउड मी फॉर 1 एंड अ हाफ आवर टू 2 आवर्स कि आप अभी मेरी शिफ्ट इतनी बजे एंड होगी तो आप तब तक सो जाओ। उसके बाद यू विल हैव टू पे। मतलब थैंक यू सो मच। तो आई जस्ट स्लेप्ट 1 एंड अ हाफ आवर। वो मुझे बस नींद आई, जो थोड़ी नींद आई, उसके बाद उन्होंने मुझे उठा दिया दैट अब मेरी शिफ्ट एंड हो रही है, आई विल हैव टू लीव एंड यू विल हैव टू पे नाउ। मैंने ठीक है, आई पेड फॉर इट एंड देन आई स्लेप्ट अगेन। आई वाज जस्ट अबाउट टू स्लीप एंड इट्स अ पूरे मतलब बिकॉज़ मुझे बहुत मुश्किल से वो सीट मिली थी सोने वाली, एक ही सीट थी। तो जब मुझे वो बुला रहे थे पे के लिए, मैंने बोला प्लीज़ मेरी सीट रोक के रखना। मैंने एक रैंडम पर्सन को बोल दिया था और मैं जब वापस आई तो उन्होंने बोला वो द रैंडम गाय हुज़ नेम इज़ शुभम। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ, लाइक व्हेन इज़ योर फ्लाइट टू वेयर और ऐसे। वो बस हमने बात करना स्टार्ट किया 6:45 एएम एंड हमने नॉन-स्टॉप 11:30 तक इतनी सारी बातें करी, इतना सारा इन्फॉर्मेशन एंड स्टोरीज़ एक्सचेंज हो गई हैं। मैंने उनकी इतनी सारी कहानियाँ सुनी, उन्होंने मेरी इतनी सारी कहानी सुनी। अगेन मतलब the beauty of just connections and human beings and the power of conversations, it's so beautiful rather than just mindlessly scrolling your phone या ऐसे कुछ भी आप करो। Sometimes it's really better to keep your head up and eyes open to find genuine people. So again, very very genuine guy, great talk, great conversation. Then I boarded my flight. उसके बाद फ्लाइट में मेरी लाइक आई डिडंट हैव अ पार्टनर। तो मैं उसे खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं आराम से पैर फैला के सो जाऊँगी। बट जो एग्ज़िट गेट था वो बहुत दूर था मुझसे, तो मुझे पहले उतरने का बहुत वो था कि नहीं मुझे पहले उतरना है। तो मैं सबसे लास्ट में चली गई जहाँ पे एग्ज़िट गेट क्लोज़र था एंड वहाँ पे एक लड़की बैठी थी। आई आस्क्ड हर कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? सो शी सेड येस। तो मैं उसके पास बैठ गई। तो उसके बाद में जो एयर होस्टेस थी, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, लाइक मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में पूछा था दैट गर्म पानी होगा क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो उनके पास है ही नहीं, लाइक दैट दैट जो भी गर्म पानी करने का डिवाइस होता है। आउट ऑफ नोवेयर दे गॉट मी अ नोट एंड लाइक कुछ चिप्स जैसा पैकेट, लाइक अ नोट रिटन ऑन इट saying thank you for flying with us and मतलब मैंने पहले मुझे 1 माइक्रोसेकंड के लिए लगा कि ओके, मतलब आई मीन आई एम नॉट इवन फेमस, ये लोग मुझे क्यों दे रहे हैं। मैंने आस्क्ड मतलब कि किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने बोला कि हम यू आस्क्ड फॉर वाटर, हम आपको नहीं दे पाए पानी, तो लाइक जस्ट अ जेस्चर। ओह माय गॉड, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू टू डू दैट। तो दैट रियली मेड माय डे। आई मीन इट वाज वन हार्ट टचिंग मोमेंट। उसके बाद में जो लड़की जिसके साथ मैं बैठ गई थी सीट, लाइक मेरी सीट एक्सचेंज करके, शी वाज़ नॉट फ्रॉम जोधपुर, शी वाज़ फ्रॉम इंदौर। तो वो जोधपुर के बारे में पूछने लग गई मुझसे एंड शी वाज़ गोइंग देयर फॉर अ वेडिंग। तो वो भी मुझसे बात करके मतलब ऐसे इतना मज़ा आया, हमने मतलब मोस्टली शी वाज़ आस्किंग मी थिंग्स अबाउट जोधपुर एंड आई वाज़ टेलिंग हर डिटेल में एंड वी एंडेड अप एक्सचेंजिंग नंबर्स और very very sweet girl. By the end of the conversation I realized she was just 16-year-old. So I'm also just 23, but for a 23-year-old girl, when you meet a 16-year-old child, it's बड़ा ऐसे लगता है वो इतने इतने समझदार बच्चे इतने छोटे एज के। सो अगेन वेरी स्वीट, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड देन क्या मैं वापस जोधपुर आ गई। डैड केम टू पिक मी टू एयरपोर्ट एंड मतलब पूरा ट्रिप बहुत अच्छा था। मतलब आई डोंट नो, मैं ये वीडियो पता नहीं कैसे एडिट करूँगी और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया होगा, बट दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सेड पूरा स्टार्ट से एंड तक इस ट्रिप के बारे में। बिकॉज़ जैसे ही मैं जोधपुर पहुँची उसके बाद भी वही शादी की इतनी सारी दूसरी चीज़ें रहती थी एंड आई हैड टू रेस्ट ऑल्सो बिकॉज़ 2 डेज़ बाद में आई हैड टू लीव फॉर दिल्ली। मुझे दिल्ली आके कोई इवेंट था ऑफ़िस की साइड से, तो आई हैड टू ट्रैवल फॉर इट। और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो 20 डेज़ का मुझे पैक करके दिल्ली जाना था। तो आई हैड वेरी लेस टाइम टू शेयर ऑल ऑफ इट। सो नाउ आई एम फीलिंग कि अच्छा, अब मेरा मतलब भोपाल वाला ट्रिप, मैंने सब कुछ बोला और इट्स मेकिंग इट इट मेड माय हार्ट स्माइल अगेन, ऐसे सब सोच के। फिर बस मैं दिल्ली आ गई एंड दिल्ली में मेरा एक इवेंट था, तो 2 दिन हमने उसका कुछ प्रिपरेशन किया, मतलब बहुत टाइम से चल रहा था। लास्ट 2 डेज़ आई जस्ट वेंट टू ऑफिस एंड 20th को वो इवेंट हुआ, देन वी हैड अ रिट्रीट। अभी मैं रिट्रीट पे ही हूँ, वी आर जस्ट एन्जॉयिंग एंड
इतनी मीनिंगफुल चीज़ें होती है ना यहाँ पे, आई जस्ट गॉट वेरी सिक हेयर, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं उतना एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, बट सम ब्यूटीफुल सेशंस आर हैपनिंग हियर, इतनी इतना अच्छी चीज़ें ये लोग डिज़ाइन करते हैं। सो आई एम जस्ट स्टेइंग हियर, दिस इज़ माय रूम, माय रूममेट इज़ स्लीपिंग अगेन, वेरी वेरी स्वीट गर्ल, जो मेरी तबीयत का इतना ध्यान रख रही है, इतना ध्यान रख रही है, एंड शी इज़ नॉट इवन माइंडिंग मी स्पीकिंग इतनी देर से। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई नो आई प्रॉमिस्ड दैट मैं इस वीडियो में 6 मंथ्स लाइक हाउ विल माय नेक्स्ट 6 मंथ्स लुक लाइक भी बताऊँगी। बट अभी पहले वाले 6 मंथ्स का भी 1 मंथ रहता है, व्हिच इज़ जनवरी, वेयर माय फर्स्ट कज़िन, माय सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं। सो लेट दैट हैपन एंड देन आई विल मेक अनदर वीडियो, बिकॉज़ ये बहुत लंबा हो जाएगा इस वीडियो के लिए। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग मी। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।